I am Govind Patel, and I had the honor to work with SRK on their vision for LEED certification for both the facilities, that is SRK Empire and SRK House. This, as you know, as discussed, these are the two iconic LEED Platinum projects that have set the tone of corporate social responsibility and the true environmental stewardship, both here in India as well as in the world. It is truly my honor to introduce a visionary global business leader, humanitarian, philanthropist, first generation entrepreneur, and the champion for the sustainability and health and wellness of humankind on the planet. Sri Govind Kaka, to those who know him, he is the founder and chairman of SRK, a global leader of natural diamond crafting and exports, and is philanthropic partner of the SRK Knowledge Foundation, which he founded to create a better future for humanity through programmatic initiatives related to education, healthcare, agriculture, and other related social programs. Under Govind Kaka's People First leadership, SRK has thrived and grown to become the one of the world's largest diamond crafting company, valued over 1.8 billion US dollars, and employing over 6,000 people who are treated as the family. For over 6 decades, Govind Kaka and people who make up SRK and SRK Knowledge Foundation have set to transform not only the diamond crafting business, but the way that business can improve the communities where they operate. By leading with the values that are instilled in Govind Kaka when he founded the company, SRK is a global leader model for the best practices for workplace culture, ethics, corporate leadership, legacy, and now sustainability achievements also. SRK climate and sustainability achievements under his leadership has been nothing short of transformational and a reminder of the power of individual and collective leadership as our corporate social responsibility and fortune rise. As important as all of these virtues, achievements, and business success are, the most important thing that everyone needs to know about Govind Kaka is that he believes our younger generations of leaders have the power, knowledge, and passion that are necessary to truly change our world for the better. He believes at his core that we need to listen to them and maximize our investment in their futures so that those who follow them will inherit a planet that only sustains them, but also gives back to them. That is what leadership about. So please welcome Govind Kaka to this stage. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं कृष्ण कन्हैया लाल की। आज का दिन मेरे लिए अनोखा है, क्योंकि आज तक कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है। क्योंकि पहले तो सेंसेटिबिलिटी नाम ढूंढने के लिए 3 दिन गया कि ये क्या है। तो ये
सेंसिटिविटी के प्रोग्राम में आप सब लोग हमारे वहां पधारे हुए माननीय श्री लक्षराज सिंह जी, श्री कामेला जी, कार्तिक भाई, रजत भाई, महेश भाई, प्रशांत भाई, अनिंद्या भाई, प्रीति भाई, अरुण भाई, प्रीति बेन, सॉरी, हरिता बेन ने अमित भाई, और सूरत का शान और मान बढ़ाने के लिए सूरत का सब जो ज्वेल ऑफ सूरत बोलते हैं ऐसे लोग यहाँ पधारे हुए, सबका मैं सम्मान और आवकार करता हूँ। अच्छा किया लक्षराज सिंह ने भी हिंदी का इतना मान सम्मान बढ़ा दिया, नकर मेरे कोई लोग बोलता थोड़ा इंग्लिश में भी बोलने का, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो बोले ऐसे अगर मातृभाषा में गुजराती में बोलना है ना तो बहुत मजा आता है। भाई आ सेंसिटिविटी અને આ બધું જે ESG ને net zero ને આ તો બધું અત્યારે આવ્યું, આમાં તમારો જન્મ થયો છે। ને અમારા ગામમાં અમે જન્મ્યા ત્યારે આ પૃથ્વીને બગાડે ને એવું કઈ હતું જ નહીં। ગામમાં માટી સિવાય કાંઈ નહોતું, કોઈ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ કોઈ વસ્તુની, ઓનલી નેચર, પૃથ્વી અને અમે ખેતરમાં રહેતા હતા, નદીઓમાં પાણી જાતા હતા, કદી નદી સુકાતી નહોતી, નદીઓની અંદર કેટલા જીવ જંતુ બધા આનંદ કરતા હતા, અમે બધા એમાં નાતા હતા। નાવામાં સમજણ પડે ને, હવે એને સ્વિમિંગ કહેવાય, પણ અત્યારે બધા સ્વિમિંગ કરવા જાય ને એ બધા કૃત્રિમ છે, અસલ નથી, નેચર નથી, નેચરલી નથી। અમે લોકો ગામમાં જતા હતા ને નદીએ નાવા, ત્યારે કોઈ છોકરાને કપડાં ન હોય, લો હવે એની મજા લ્યો તમે। ઈ નાવાની, ઈ નેચર, આ નેટ ઝીરો એનું નામ છે। तो आज हम थोड़ा जो सब्जेक्ट है तो मेरे को थोड़ा बोलना तो पड़ेगा। तो अभी ऐसा है कि हम जो यहाँ हम किसान पुत्र होने के नाते हमारा एनवायरनमेंट पर बहुत फोकस रहता है नेचुरली। तो मैं कोई भी काम देखते हम लोग करते हैं तो पहला यही थिंक करते हैं, दूसरे का तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा ने, सामने वाले को तो कोई मुश्किल नहीं आएगा ने। हम सामने वाले में सब लोग आता, खाली मानव नहीं आता, उसमें जीव प्राणी मात्र आते हैं, और एनवायरनमेंट में झाड़ है, पहाड़ है, पानी सब आते हैं। क्योंकि हम जब गांव में थे तो एवरी डे 23 पशु, इसमें बलद होता, गाय होता, घोड़ा होता, हर दिन में 3 बार हम पानी पाते थे उनको। तो ये नेचर जो होता है वो तो सब हृदय में है। तो हम यहाँ आए तभी से नेचुरली जो भी काम होते हैं ये भगवान की कृपा से, ये जो बोलते हैं अपने कि नेट जीरो में क्या है मालूम नहीं, मगर एनवायरनमेंट का काम जो चलते हैं यही मैं बोलता हूँ कि अगर हमने बिल्डिंग बनाया
तो हमने सोचा कि बिल्डिंग कैसा बने तो हम ज़्यादा नुकसान नहीं करें। पहले ऐसा सोच नहीं था कि हमको ये लीड अवार्ड मिलेगा, वो भी यूएस ग्रीन बिल्डिंग का लीड प्लेटिनियम अवार्ड वो हमारी बिल्डिंग को मिला, एसआरके को। वो भी एक बिल्डिंग नहीं, 2 बिल्डिंग बनी, दोनों को मिला। और आपको जान के आनंद होगा कि पूरा जो विश्व है, इंडिया में वो जो फैक्ट्री बोले तो फैक्ट्री में सबसे पहला पूरा इंडिया में है कि लीड प्लेटिनियम अगर मिला है तो कोई भी उद्योग, कारखाने बोलते हैं, फैक्ट्री बोलो, उसमें पहला है। सबको मिलता है मगर क्या है भाई, 5 स्टार होटल है तो मिल जाता है, मगर फैक्ट्री में मिला ऐसा पहला है। और ये मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मगर ये मेरा सब बच्चे लोग बात करते हैं कि अंकल, दादाजी ऐसे करके बोलते हैं कि हमारा 1.5 साल से जो ऑनलाइन उनका एनवायरनमेंट के लिए जो उनका 2 लाख से ज़्यादा बिल्डिंग ऑनलाइन उसमें दिखते हैं, ऐसे वो लोग बोलते हैं। उसमें से हमारी जो दोनों बिल्डिंग है वो दोनों टॉप 6 में रहती है पूरा विश्व में। ये नेचुरली स्वभाव से हो गया है। देखो कि ये अपना सोलार निकला तो सबसे पहले हमने हमारा पूरा गांव सोलार विलेज बना दिया। तो जब सोलार विलेज बना तो इलेक्ट्रिक बची, तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट को फायदा हो गया। 750 अपना जो सैनिक है जो शहीद हुए हैं, शहीद को 750 सोलार उनके घर पर लगाने का ये सब ने तय किया। हमारा जो वर्कर है लास्ट बोनस में, तो हमने लास्ट दिवाली में 1000 जो हमारा स्टाफ मेंबर है उनको सोलार दिया। तो उसका क्या मीनिंग हो गया कि सोलार से अभी अपना एनवायरनमेंट को फायदा, जो हम आगे बढ़ रहे पृथ्वी को बचाने के लिए, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। देखो हम दूसरे के लिए करें वही मैंने आपको समझाया कि भाई क्या होता है सेंसेटिबिलिटी। तो उसमें यही है कि दूसरे के लिए कुछ करें तो हमारा जीवन में हम हमारा, क्योंकि डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते थे कि अपना वखान करने का वो मृत्यु बराबर है, तो वो नहीं करना चाहिए। मगर ये सब्जेक्ट है यहाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, बेटी बचाओ के लिए जब करना था तो आप सबको मालूम है पूरा सूरत जो हमारा समस्त पाटीदार आरोग्य ट्रस्ट है, तो हम लोग ने उसमें 12 लाख लोग इकट्ठो किया था। 12 लाख 1.2 मिलियन पीपल ने भोजन लिया था। और आप सबको मालूम है सूरत से कामरेज, सूरत से कड़ोदरा कोई एक भी रोड ऊपर कोई वाहन नहीं चल रहा था। 12 लाख लोग का करके हमने सौगंध दिलवाया था कि कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे बेटी का। तो ये जो बेटियों का काम है जो ये हमने मिला है कि हमारा, क्योंकि सोच है कि कुछ दूसरे के लिए कुछ करें। आपको मालूम है कि हमने वाटर रिचार्ज के लिए 2000 में 5 साल हम लोग ने जो वाटर सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट में लाखों वो चैनल ऑफ द चेक डैम बनाया। और आज पूरा सौराष्ट्र जो ग्रीन हुआ उनका कारण यहाँ है, यहाँ से शुरू होता है। तो ये जो सब काम है दूसरे के लिए करने को जो आनंद है, जो वो अंदर से, तो क्या है, गांधी जी का आत्मकथा मैंने पढ़ा, वो सत्य ना प्रयोग हो गुजराती में, हिंदी में सत्य का प्रयोग होगा। तो ये तो मैंने 50 साल पहले पढ़ा था। तो गांधी जी ने क्या लिखा था
कि मानव जात के लिए जो भी जरूरियात है ये सब पृथ्वी की पास है। वो पृथ्वी पूरी मानव जात की सब उनकी जो भी जरूरियात है वो पूरी कर सकती है, मगर ये मानव का जो लोभ है, ये लोभ पूरा करने के लिए पृथ्वी असमर्थ है। ये गांधी जी ने लिखा है। हमको यहां से बाहर निकलने का है। क्या हमारे लिए पृथ्वी माता तो एकदम रेडी है, सब कुछ ऐसा नहीं है। हमारा जीवन, हमारा अभी जो भी जीवन चलता है पृथ्वी से ही चलता है, तो पृथ्वी के पास सब कैपेसिटी है, मगर वो कैपेसिटी हमारा जो लोभ है, ओवर जो हमारा एक्सप्रेस वो करने के लिए नहीं, वो ही बिगाड़ते हैं। देखो सब जीवन अच्छा कर, क्योंकि हम 100 साल पहले और आज टोटली चेंज है, तो ये सही है। ऐसा नहीं कि सब हमने बिगाड़ दिया, सब सही है, करना ही पड़ेगा, हम करेंगे, मगर जो भी बिगड़ा है, बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है और हम ही कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये पृथ्वी बिगाड़ी तो कोई हाथी ने बिगाड़ी, कोई सिंह ने बिगाड़ी, कोई बिल्ली ने बिगाड़ी, कोई डॉगी ने बिगाड़ा, वो मानव जात ने बिगाड़ा कि वो सुधारा, जो कुछ किया वो मानव जात ने किया। तो ये हम मानव जात को नहीं, वो नेट जीरो कर जो है कुछ भी ये एनवायरनमेंट के लिए करना पड़ेगा। तो हम लोग सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोग के मन में ये पृथ्वी को रक्षण करने की भावना थी, पड़ी हुई है, आप कर रहे हैं, इसलिए तो आप यहाँ आए हैं। यहाँ कोई डांस का तो प्रोग्राम था नहीं, यहाँ कोई ऐसा कीर्तन, ऐसा तो कोई प्रोग्राम गायन था नहीं, हैप्पी। यहाँ तो क्या था कि हम कैसे पृथ्वी का रक्षण करें, एनवायरनमेंट को हम कैसे सुधार करें, यही आप सोच समझ के आए हैं। तो ये आपके अगर हृदय में नहीं होता तो आप क्यों यहाँ आते? तो आप सब लोग यहाँ जो पधारे हैं तो उनकी चिंगारी यहाँ तक नहीं रहेगी, आप में भी रहेगी, हमारे में भी रहेगी, और ये आपको बढ़ाने का है और उसका प्रचार प्रचार करके ये बात पूरा विश्व को पहुंचाने की है। और ये जब लीड बिल्डिंग का अवार्ड तो मिला, ये तो अब महेश भाई वो तभी वो यूएसए ग्रीन बिल्डिंग में था, तो उनको ऐसा क्या है कि कोई इंडिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है कि जिस वो फैक्ट्री बिल्डिंग में भी इतना सब ख्याल रखा है। वो खुद देखने को आए हैं और देखने के आने के बाद बोला कि ये पूरा विश्व जो समझते हैं उसके ये ऊपर का है। मैं उनको थोड़ा हाईलाइट करूंगा कि तो मेरे को आपको बॉस्टन बुलाने का है और पूरा विश्व के सामने रखने का है कि भाई इंडिया क्या है और इंडिया का लोग क्या है, वो मेरे पूरा विश्व को ये बात बताने का है। तो मेरे को बॉस्टन बुला के उसने मेरे को भी अवार्ड दिया, वो पहला भारतीय था। अभी मैं लास्ट बात बोल दूं कि इंडिया ने तय किया है कि हम 2070 तो तक में नेट जीरो में जाएंगे, पूरा हो जाएगा इंडिया का, हो ही जाएगा। क्यों नहीं, हम सब लोग हैं, हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं, तो हो ही जाएगा। मगर हमारी जो कंपनी है वो तो अभी नेक्स्ट ईयर सबसे आगे निकल के उनका ऐसा इच्छा है कि हमारी जो कंपनी है,
हमारी जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, ये सब नेट जीरो में 2024 में मीन्स नेक्स्ट ईयर चली जाएंगी। तो और मेरा हृदय का ये भाव है कि 2049 में मैं 100 साल का होगा। तो ये नेट जीरो फॉर जो 2070 है, अगर हम सब लोग लग जाए काम में तो इंडिया का आगे निकलकर ये 2049 में हो जाए मेरा 100 साल में, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मैं प्राउड फील करूँगा, क्योंकि फिर मेरे को 100 साल जीना पड़ेगा वो देखने के लिए। तो आप सब लोग प्रॉमिस करेंगे कि काका आप 100 साल रहो और हम आपको दिखाएंगे इंडिया 2049 में फिर नेट जीरो 4 हो गया। धन्यवाद। आप सब लोग हमारे वहाँ यहाँ पधारे और हमको इतना हौसला बढ़ाया, हमारा सब यंगस्टर का हौसला बढ़ाया, इससे मैं वडील तरीके प्राउड फील करता हूँ। फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। Let's give a standing ovation with a round of applause to our beloved Govind Kaka.